ए राजनिक, रोनाल्डो भैया के बारे में बताना कुछ। Yeah, we all know about Cristiano Ronaldo and what kind of a player he is, and yeah, why not? Yeah, he has shown what he can do he can do at his best, and he has shown the entire world what a player he is. And against Tottenham, he was at his best, and he has shown that he can be an important player for this team. That's what we think about Cristiano Ronaldo, and he's a player who very nicely take cares of himself, and he is a very good professional, and he's always up to the mark. And last time he delivered. He scored a hat trick when nobody thought he would be scoring a goal. We didn't think of that. Also, this game is going to be tough. It's a tough game, but we are on a very good run of form. We had done a good job against Spurs and against Conte, so we are all motivated. We have been happy about that win, but we started to work right the next day. So yeah, why not? Yeah, we can win this one. Will you ask me if what will happen if we will lose the game? Let's talk about something different. What will happen if we win this game? So we will be amongst the best 8 teams in Europe. So that's a great thing if you ask me. Hey Ragnik, will Cristiano Bhaiya score a goal tonight? Well, I think you should ask it to Cristiano only. Cristiano, hey man, hi there. Hey, अबे goat. Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब पहले सबसे पहले very sorry for that acting. वो अलग ही लेवल की बकचोदी थी, पर दिन मुझे करते बड़ा मजा आया था. So you know what? Chuck it. But things are getting serious, because if there would have been any time to face Atletico Madrid, this is now the time. And United are gonna face them in the second leg of the Champions League round of 16. And bhai sahab, what a game this would be. And United एक तरफ आफ्टर दैट बिग विन अगेंस्ट स्पर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैट्रिक के बाद, एक सुई लेवल की परफॉर्मेंस के बाद, they're gonna face Atletico Madrid, who over this whole season have been not at their best. Defensive problems, Simeone not figuring out which are the players that he's gonna use, एक प्रॉपर लाइनअप क्या रहना है, एक सिस्टम क्या है. डिफेंसिवली काफी ज्यादा दिक्कतें लगी हैं. ऑब्वियसली यस, इनिशियली कोविड का सिनेरियो था, प्लेयर्स काफी लंबी टाइम तक इंजर्ड थे. कॉन्डोग्बियो को डीएम रोल से सेंटर बैक पोजीशन पे खेलना पड़ रहा था. And Suarez is misfiring. Is not the same guy who he was last season. But problem काफी ज्यादा डीप है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड में. एंड यूनाइटेड की अगर जहां तक बात है तो दे हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स रिटर्निंग, जैसे कि स्कॉट मैकटोमिने वापस आ चुके हैं. शॉ इज प्रोबेबली आउट ऑफ दिस गेम, जहां तक मुझे लगता है अब कल ही पता चलेगा कि व्हाट्स गोना हैपन. बट ब्रूनो फर्नांडिस इज आल्सो रिटर्न, तो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज. तो ये सारी बातों के बारे में हमें बात करना है. वी हैव टू ट्राई टू फिगर आउट द बेस्ट लाइनअप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द लाइनअप फॉर एथलेटिको मैड्रिड. व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्रेडिक्शन एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्रेडिक्शन? व्हाट इज गोइंग टू बी द लाइनअप ऑफ बोथ द टीम्स? वी विल आल्सो हैव टू टॉक अबाउट दैट. बट बिफोर, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application. It's the best football application that you can have in your phone, and it's very easy to download. All you need to do is scan this QR code right over here, or you can go down into my description, find a link, download OneFootball application, because it's the best place, like I said, because it has the in-depth analysis of all the games that you want to find about if you are interested into learning football. It has the fixtures present over there for your favorite team, the live commentary is over there, the lineups are updated over there, and the stats are very much detailed. So what are you waiting for? Download OneFootball application and come back to this video right now. So agar if you take a look at this United की team, what do you see is a problem? क्या vulnerable factor है यहाँ पे जिसको capitalize कर सकती है एथलेटिको मैड्रिड? बताओ मुझे. मैं बताता हूं. बहुत सारे लोग कहेंगे डिफेंसिव प्रॉब्लम्स ईशान भाई, कई लोग कहेंगे मिडफील्ड डोमिनेशन, कई लोग कहेंगे फाइनल थर्ड में क्लिक करना, ठीक है, एंड कई लोग कहेंगे मग्गू. ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूं मेरे भाई, मैं समझ रहा हूं, तो मग्गू ही बोलेगा. हरामखोर तुम में से 10 में से 9 लोग बोलेंगे मग्गू. बट जहां तक है, अगर आपने मेरा वो पिछला मैच रिव्यू देखा जिसमें आई सेड कि मग्गू का गेम रियली सही था until he scored that own goal. Still if you ignore that own goal,
thought कि Magu had a good game, decent game at least. He kept Harry Kane quiet, he kept Son quiet, he kept Kulusevski quiet. That is a very good thing for him after coming from a bad run of form जहाँ पे सामने वाली टीमों ने उसको literally crush किया था. In that game he had a good game, he had a decent game. But अगर तुम एटलेटिको मैड्रिड की अगर बात करोगे थोड़ी देर के लिए, just keep United aside because we have talked about United for a lot of times. But एटलेटिको मैड्रिड की अगर बात करें, after that game of Manchester United, जहां पे they were the better side in the first 60 minutes of the game, they should have scored more goals, but second half में you saw United trying to come back and they got a very important goal through Elanga. वही एक break था and they scored that goal. Otherwise, if you look at that game, Atletico Madrid could have scored more than one goal. I think 2 goal मार सकते थे वो, to be very honest. But अच्छी बात यहाँ पे है कि even United had a very bad game that night. The result is very good for them. 1-1 is a decent result. It is at least better than 1-0 तो उस मैच के बाद से जितने भी मैचेस हुए हैं they have won it. 3 मैच खेले, they have won it. लास्ट वाला मैच उनका बेतीस के अगेंस्ट था, they also won it 3-1. एंड एक सरप्राइजिंग चीज आप उसमें देखोगे, बट पता है क्या, सिमियोने है यार, सरप्राइजिंग चीज नहीं है. 35% पोजीशन था, सामने टीम बेतीस है, उसने ज्यादा पोजीशन रखा, उसके ज्यादा शॉट्स थे, बट यहां पे एटलेटिको मैड्रिड विद 8 शॉट्स, 6 ऑन टारगेट, 3 गोल्स. That's what Atletico Madrid needs. That's what Simeone needs. कहीं ना कहीं इसको बहुत सारे लोग एक नेगेटिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल कह देंगे कि नेगेटिव खिलाता है, एंड वी डोंट लाइक द स्टाइल. जॉ फेलिक्स का फॉर्म देख रहे हो तो ठीक है, आई वोंट गो आउट एंड से कि फेलिक्स इज जस्ट टेयरिंग द लीग अपार्ट, ऐसा भी नहीं है यार, बट मुझे यहां तक लग रहा है ये फेलिक्स का बेस्ट है. जो हम देख रहे हैं अभी करेंटली, जॉ फेलिक्स हैज बीन अनलीज्ड एंड पिछले 2-3 गेम्स एंड खासकर यूनाइटेड वाले गेम के बाद से जॉ फेलिक्स हैज बीन परफॉर्मिंग रियली गुड. पिछले मैचेस में उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला है, ब्रेस भी उसने पिछले मैचेस में मारी है. बट द मोस्ट कंसिस्टेंट गाय फॉर दिस टीम हैज बीन एंगल कोरेया एंड ही हैजंट बीन ड्रॉप्ड. काफी ज्यादा ट्रस्ट किया है उसको सिमियोने ने. मतायस कुनिया इज आउट, यानिक करास्को, थॉमस लेमार, ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि आउट हैं, दे वोंट बी प्लेइंग. करास्को बहुत बड़ा मिस होगा बिकॉज यू ऑल नो कि हाउ मच करास्को इज इंपॉर्टेंट. बट साथ ही साथ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स मिसिंग आउट, तो मैं लाइनअप के बारे में भी बात ही कर देता हूं. तो ओब्लाक गोल में, सावे गिमेनेज एंड मंदावा. फिर राइट बैक पे आई बिलीव बिकॉज वर्सालिको इज ऑल्सो आउट ऑफ दिस गेम, आई थिंक कि राइट बैक पे लोरेंटे, राइट विंग बैक लोरेंटे खेल सकते हैं. हेरेरा, कोके एंड डिपॉल, एंड लेफ्ट पे रेनान लोडी कैन प्ले. एंड अप टॉप फाइनल 2 की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक कि एंगल कोरेया इज एन ऑप्शन. जॉ फेलिक्स मेरे हिसाब से खेल रहा है एंड आई एम ओनली डाउटफुल अपॉन विल ग्रीजमान प्ले और नॉट. आप बताओ आप किसको खिलाओगे? मतलब एटलेटिको मैड्रिड की प्रॉब्लम ही है यार. मतलब मैंने ये लाइनअप क्यों बोला, बिकॉज आई फील कि दिस इज द लाइनअप विद द बेस्ट सूटेड प्लेयर्स. ये डिफेंसिव पार्टनरशिप यूज होती आई है. विंग बैक्स के लिए करास्को अवेलेबल नहीं है तो मार्कस लोरेंटे फिट हो गए, रेनान लोडी बेहतर खेल रहा है तो फिट हो गए. मिडफील्ड का कनेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैं रखूं? कोके इज बैक सो ही विल प्ले. लास्ट टाइम ही वाज आउट, ही कुडंट प्ले दैट गेम, बट कॉन्डोग्बिया इज आल्सो बैक. अब मुझे पता नहीं इसको स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मिडफील्डर्स दैट यू कैन प्ले. अप टॉप आई एम कंफ्यूज बिकॉज Suarez is there, but I think he'll start the game on the bench. Cunha is out. बस Griezmann के बारे में I'm doubtful. तो you can let me know, will you start Griezmann or will you start Angel Correa? That I want to know. बाकी United के लिए you know कि backline वही रहेगी यार. देखो Luke Shaw की प्रॉब्लम है थोड़ी सी. Shaw out most probably हो सकते हैं गेम से, illness and sickness थी, but Telles खेल रहा है चाहे Shaw अवेलेबल हो ना हो. मैं Telles को खिला रहा हूँ, ठीक है, Diego Dalot को खिला रहा हूँ और Varane and Maggu खेल रहे हैं. मिड में आप पूछोगे कौन, तो McTominay वापस आ चुके हैं, तो for me McTominay would play. I would want a fit Matic to play in this game, but last time he played the whole game, so I don't know if Matic would be fit to play. Would you play Matic? Again, it's about his fitness, right? तो McTominay along with Fred, up top Bruno आ चुके हैं, तो I'll go with Bruno. अब इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो Paul Pogba would be dropping out of this game. Last match में he played the full 90 minutes, तो मुझे लगता है कि इस मैच में ड्रॉप आउट होंगे. एंड अप टॉप क्रिस्टियानो, रैशफोर्ड, इलांगा, रैशफोर्ड तो नहीं, इलांगा एंड सांचो खेलेंगे मेरे हिसाब से. अब ये लाइनअप तो है, बट हाउ डू यू थिंक द गेम कैन गो? मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में बात किया, कमियों के बारे में मैंने बात किया कि व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज जहां पे एटलेटिको मैड्रिड एक्सप्लॉइट कर सकती है. यही क्वेश्चन मैं अगर रिवर्स करूं तो अब तुम लोग बताओ मुझे, यूनाइटेड फैंस जो भी यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे हैं, कि एटलेटिको मैड्रिड की क्या वल्नरेबिलिटी है. यान ओब्लाक का जो फॉर्म रहा है लेटली इस सीजन अगर बात करूं मैं, हैजंट बीन गुड. ही हैज कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स. अपने XG कंसीडेड जो होता है ना, शॉट पर कंसीडिंग का रेशियो, ही हैज एक्सीडेड दैट. नंबर 1 पॉइंट डिफेंसिव प्रॉब्लम है, यस यू कैन से कि दैट इज अ वल्नरेबिलिटी, वहां पे आप कैपिटलाइज कर सकते हो. दूसरा है कि मिडफील्ड, अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेयर्स, जस्ट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रोटेशंस, दे हैवंट फिगर आउट कि कौन है उनका मेन स्टार्टर कौन है. फिर आई थिंक कि एक मेंटालिटी का भी इश्यू है उनका. यू नो दीज आर द 3 थिंग्स, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो उनका है मेंटालिटी वाला थिंग. यू नो व्हाट,
आई बिलीव कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड थोड़ा सा नर्वस होगी कमिंग एट ओल्ड ट्रैफोर्ड, येट दे हैव वन देयर पास्ट 3 games, बट यूनाइटेड आर मच मोर मोटिवेटेड, स्पेशली बिकॉज पिछले मैच में इट वाज अ ह्यूज क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोमिनेशन। एंड भाई साहब, जो भी लोग सोच रहे हैं कि ये वीडियो का टाइटल एंड वीडियो की थंबनेल क्या है, तो भाई मैं बता दूं, जैसे कि ब्लड इन वाटर, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड एक पूरे पानी को लाल कर देता है, वैसे ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको पता है छोटा सा कट लगा उसने भी, बस लहू मुंह लगाया उसे स्पर्स के अगेंस्ट, या स्कोर्ड हैट्रिक। एंड मुझे पता है कैसा लग रहा है कि यार एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वो फिर से बर्स्ट करेगा। तो रेफरेंस वही था, दिस इज अगेन गोइंग टू बी दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस डिएगो चोलो सिमियोनी बैटल, एंड दिस इज द फाइनल राउंड। एंड यहाँ पे अगर आप जीतते हो तो यू आर इनटू द क्वार्टर फाइनल मेरे भाई, तो इट्स अ वेरी बिग गेम। मुझसे प्लीज भाई, प्लीज मुझसे प्रेडिक्शन मत पूछना, इट कुड गो इन आइदर वेज, इट ऑल डिपेंड्स कि ऑन द डे कौन सी टीम अपना बेसिक सेट ऑफ जॉब सही करती है। दे आर डिफेंसिवली सॉलिड, दे प्रोग्रेस द बॉल क्विकर, दे अटैक्ड नाइसली इन द फाइनल थर्ड। बेसिक्स ऑफ फुटबॉल को सही करो, यू विल विन दैट गेम। बिकॉज मिड की अगर जहां तक बात करोगे अगर आप, तो बहुत ही गंदी बैटल होने वाली है यार मिड में। आई थिंक इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम, और बिकॉज इस बार कोके भी रहेगा। बट जहां तक आपको पता है कि एथलेटिको मैड्रिड पोजीशन रखना नहीं चाहती है, यूनाइटेड विल हैव मोर ऑफ द पोजीशन, बट एथलेटिको मैड्रिड दे आर वेरी क्विक इन काउंटर्स, दे विल अटैक यू डिफेंसिवली। ध्यान देना पड़ेगा यूनाइटेड को, फुल बैक्स टेलेस एंड डालो को बहुत ध्यान देना होगा, जो फिलिक्स के रन को ध्यान रखना होगा। लास्ट टाइम आउट यू रिमेंबर हाउ दैट गाय स्कोर्ड दैट गोल। तो काफी सारी चीजें जो कि इस मैच में हो सकती हैं। व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस गेम इज लाइक आई डोंट नो, दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ दोज गेम्स जहां पे मैं लिटरली कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज ऑन द डे इवन एथलेटिको मैड्रिड कैन हर्ट यू, एंड ऑन द डे आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन डू व्हाट ही डिड लास्ट टाइम आउट। सो पता नहीं मेरे भाई लोग, आप बताओ मुझे व्हाट डू यू थिंक इज द प्रेडिक्शन फॉर यू टुनाइट, लेट मी नो एवरीथिंग। आपसे मैं मिलता हूँ लाइव स्ट्रीम पे यार, आज सब लोग आ जाना, रात में 1 बजे मैच, तो 1:30 बजे लाइव स्ट्रीम हम 1 बजे स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल, I'll see you guys very soon. Until then, as always, good luck to both the teams. Bye and peace out.